Thank you, Ms. Fajar, and thank you, my team. Along with me is Mr. Bilal and Ms. Saddaf, our tax department. So let's begin the show. So first of all, I would like to thank you all for sparing your valuable time and participating in this webinar. As the name shows, that e-filing of annual income tax return and objectives of today's webinar has been explained by our coordinator, Ms. Fajar. So these were the objectives. As already explained, that in today's seminar, we will discuss about the basic concepts of income tax and then how to determine the tax liability and who is required to file the income tax return and wealth statement and who is not required to file. We will also let you know, and then FPR IRS portal demonstration and filing will be given by our expert, Mr. Bilal. And then and in the panel discussion, in question answer session, we all will be available, including our expert, Ms. Sadaf and Mr. Bilal. So issue has been resolved now, and I have explained the objectives of today's webinar. That to understand the basic concept and what is taxable, determination of tax liability, and who is required to file the tax return and wealth statement, who is not required to. And then demonstration will be given by our expert, Mr. Bilal. And after that, there will be panel discussion and question answer session in which we all will be available, including Madam Sadaf and Mr. Bilal. So this is my definition, that tax is the price of living in a civilized society. Because to enjoy the common facilities, the inhabitants of society has to contribute, and that contribution is called tax, basically. Tax return is a form, basically these are the small definitions so that you understand that what is the tax return. Tax return is a form on which taxpayer makes an annual statement of income and personal circumstances used by the tax authorities to assess the tax liability for the tax. And then the wealth statement is the statement of all assets, whether existing or acquired, transferred during the year, all the liabilities, whether existing or assumed during the year, and all the expenditure incurred during the year that is used to assess the actual income of an individual. Basically, the wealth is the basic document which really shows that what the person has earned. Without wealth statement, the purpose of tax return is not viable, because one cannot assess that how much assets one has created, and whether the income behind that, the sources behind that, are tax has been taxed or not taxed. Then filing means keeping the documents in a safe place and being able to find them easy and quickly. The documents are cared for, will not for easy tear, get lost or dirty. E-filing is simply a way to serve your documents using internet and online system. So for the last more than a decade, everything has common IT based system है अब तो then now the FBR ने भी इसको e-filing को adopt किया है. Now all the documentation and filing is being done through FBR portal. So that is basically called e-filing. So there are certain benefits as well for e-filing, and the submitting the documents electronically, that there is convenience, and it means you can electronically file 24 hours a day, 7 days a week. I mean, there is no restriction. Whenever you find time, you can walk out and then file the return. Then there is security. Your tax return information is encrypted and transmitted over secure lines to ensure the confidentiality. There is accuracy as well, because in manual returns there were errors of computations and calculations, but in electronic return, most of the calculations and computations are done by computer, and there are lesser chances of errors.
Then you get immediate proof of filing. I mean, you get, whenever you submit your tax return, you get the acknowledgement, and that is your proof of filing. There is direct deposit facility as well. The FBR has, now you can deposit your taxes through banks online, your Easy Paisa, Jazz Cash, whatever mechanism you have, you can pay your taxes. Then there is lesser interaction with the tax officials, mean lowering the corrupt practices which has been in the past as well. Then it is for the tax authorities, they get data in soft forms and they can analyze the data, so which help them for the better governance and monitoring. So now we start the few concepts of income. First, we discuss the taxable income. The taxable income of a person for the tax year shall be the total income of the person for the year, reduced but not below zero by the total of any deductible allowances under this law. Section 9 basically defines the taxable income like this. And then tax on taxable income, what is that? Section 4 of the Income Tax Ordinance 2001 defines that income tax payable each year. Yes, you all know that it is paid every year. Then it is applicable on every person who has taxable income for the year. ये सिर्फ उनको applicable होगा जिनकी taxable income होगी during the year. Then computed by applying the rate or rates of taxes applicable to the taxpayer. As you all know, there are different rate tables for companies. There is different rate table. Then for individual, there is different rate table. Then in individual category, there is salaried. For salaried class, there is a different rate table. Then there are certain separate block of income tables like profit on debt, capital gains, etc. So the tax rate is depends upon the nature of the income and sometimes the types of the taxpayers, the legal status of the taxpayer. So then on the taxable income for the taxpayer for the year and from resulting amount shall be subtracted any tax credits allowed to the taxpayer for the year. यानी कि जो total आपकी liability compute होती है उसमें से आप tax credits और rebates in the tax liability वो reduce करते हैं, then it becomes your net tax liability. Taxpayer की को define किया है section 2 में. Taxpayer means any person who derives an amount chargeable to tax under this ordinance, and include any representative of a person who derives an amount chargeable to tax, any person who is required to deduct or collect tax under the provisions of the tax ordinance, and any person required to furnish a return or pay tax under this ordinance. So they are called the taxpayer under as defined under section 2. So we were discussing कि tax year क्या होता है. Tax year एक 12 months का period है, which starts from July and ends on 30th day of June. तो normal tax year is जो होता है वो 30th June को close होता है, और 30th June जिस साल में fall करता है बेसिकली उसी से डिनोट किया जाता है टैक्स ईयर को. जैसे 30 जून टू 30 जून 2023 को अगर इनकम ईयर एंड हो रहा है तो देन टैक्स ईयर उसका 2023 होगा. सो देयर आर डिफरेंट टैक्स ईयर्स एज वेल. आप सिलेक्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन या अलाउ FBR जो कमिश्नर है कंसर्न दे में अलाउ अपॉन द एप्लीकेशन. अगर आपकी सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं या नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है या समटाइम्स टू मैच अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने इंटरनेशनली अपने उसके साथ मैच करना है तो दे कैन ऑप्ट फॉर द डिफरेंट टैक्स ईयर बट आफ्टर अप्रूवल. तो उसके लिए डिफरेंट टैक्स ईयर भी हो सकता है. बट उस टैक्स ईयर को कैसे डिफाइन किया जाता है, जैसे 30 जून के बाद जो भी इनकम ईयर क्लोज होगा वो अगले साल में चला जाएगा. इनकम ईयर एंडिंग ऑन 30 सितंबर जैसे 2022 जो था उसका टैक्स ईयर 2023 है, और 31 दिसंबर को जो क्लोज हुआ जिनका साल उनका भी टैक्स ईयर 2023 है.
31 मार्च को जो क्लोज हुआ उसका भी टैक्स ईयर 2023 है। यानी वो जो नॉर्मल इनकम ईयर है उसके अंदर अंदर जो भी ईयर किसी का क्लोज होगा तो वो सेम टैक्स ईयर में फॉल करेगा। ऑल्दो के इनको ज्यादा पीरियड मिल जाता है, जैसे कि आप देखें कि 30 सितंबर को जिनका टैक्स ईयर इनकम ईयर क्लोज हुआ है उनके लिए पूरा एक साल मिल गया उनको टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए। So, in summarized form, if we say that what is the mechanism of income tax, इसमें चार्जिंग जो है इनकम टैक्स की वो कैसे होती है। इनकम टैक्स बेसिकली इज अ टैक्स बेस्ड ऑन द क्वांटम ऑफ इनकम अर्न्ड बाय a taxpayer during an income year. Tax rates and methods, as already explained, may differ, vary depending upon the status of the taxpayer or sometimes on the nature of the income. So status and types of the taxpayer include like individuals हैं जिसमें salaried individual and other individuals भी आते हैं, business entities, इसमें proprietorships, association of persons जिसको firms कहते हैं and companies, and taxpayer की definition में वैसे other organizations भी आ जाती हैं like organizations जो withholding agents हैं, they are also the taxpayer under the definition of the income tax law. इसकी कलेक्शन कैसे करती है गवर्नमेंट? एनुअल कलेक्शन होती है थ्रू एनुअल रिटर्न्स, जैसा कि अभी तमाम लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे और उसके साथ जो टैक्स पेएबल बनेगा वो जमा करवाएंगे। एंड देयर इज स्कीम ऑफ एडवांस टैक्स एज वेल। एडवांस टैक्स जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और समटाइम्स उसके अलावा भी एडवांस टैक्स की कुछ प्रोविजंस हैं मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स पे भी एडवांस इनकम टैक्स जो है वो कलेक्ट होता है, जिसको नॉर्मली विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स कलेक्शन थ्रू विद होल्डिंग एजेंट्स जो है इसमें कलेक्शन होती है, बट दैट इज एडजस्टेबल समटाइम्स एंड कुछ केसेस में वो मिनिमम या फाइनल टैक्स लायबिलिटी भी होती है, वी विल डिस्कस लेटर। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सो इसमें हेड्स ऑफ इनकम है जो अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिफाइन हुए हैं। सो देयर आर बेसिकली 5 हेड्स ऑफ इनकम। जैसे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उससे जो इनकम कमाते हैं अर्न करते हैं उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस कहा जाता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मींस जो रेंट्स प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है। कैपिटल गेन्स जो कैपिटल एसेट्स हैं उसकी सेल के ऊपर अगर गेन होता है तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स। देन सैलरी इनकम है। सैलरी यू ऑल नो कि जो एम्प्लॉयमेंट से जो भी एम्प्लॉय जो अर्न करता है दैट इज कॉल्ड द सैलरी इनकम। एंड देन देयर आर सर्टन अदर इनकम्स जिसमें मिसलिनियस डिफरेंट किस्म की इनकम्स होती हैं, उसको अदर इनकम कहते हैं। जैसे इसमें फर्दर अगर आप स्टडी करना चाहें तो सैलरी इनकम जो है वो उसके लिए रेलेवेंट सेक्शंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो है सेक्शन 12, 13, 14 एंड रेलेवेंट रूल्स जो हैं उसको स्टडी करेंगे तो देन यू विल गेट टू नो कि सैलरी इनकम में क्या क्या फॉल करता है। और इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिलता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर दैट इज कॉल्ड द सैलरी इनकम, वेदर इन पे, वेजेस, कंपटीशन, एनुटी और उसके अलावा जो भी बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मिलते हैं दोज आर कॉल्ड दी सैलरी, और परक्विजिट्स भी इसमें शामिल हैं। देन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है इसमें इसमें बेसिकली इसको रेंटल इनकम कहते हैं और रेंटल इनकम के लिए शर्त ये है कि आप प्रॉपर्टी ओन करते हो और वो रेंट पे दिए हो तो दैट वुड बी कॉल्ड द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है समटाइम्स कि अगर सबलेटिंग है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाती है। लाइक मैं ओनर नहीं हूँ किसी भी बिल्डिंग का, बट आई हैव रेंटेड आउट दैट बिल्डिंग एंड देन सबलेटिंग अगर की है तो देन वो मेरी प्रॉपर्टी इनकम नहीं कहलाएगी, दैट वुड बी कॉल्ड दी अदर इनकम के हेड में आएगी। देन कैपिटल गेन्स। गेन इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी पे गेन है, देन मूवेबल एसेट्स पे भी गेन है। और मूवेबल एसेट्स में इंडिविजुअल्स के केस में कुछ एसेट्स एग्जेम्प्ट भी हैं, बट कुछ एसेट्स जो हैं वो टैक्सेबल हैं। नॉर्मली ज्वेलरी, कॉइन्स, एंटीक्स और पेंटिंग्स वगैरह जो हैं इससे अगर कोई इनकम होती है
तो वो टैक्सेबल है। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि ज्वेलरी अगर उस पे गेन होगा तो वो टैक्स नहीं है, बट देयर इज टैक्स। हाँ, अगर आप पर्सनल यूज की कोई गाड़ी बेचते हैं, उसमें अगर गेन होता है तो दैट इज एग्जाम्प्ट अंडर द लॉ। तो इसको फिर फर्दर डिटेल से अगर पढ़ना हो तो यू कैन स्टडी सेक्शन 37 एंड सेक्शन 38 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। देन गेन ऑन सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स एंड जो ट्रेडेबल सिक्योरिटीज होती हैं उसको सेक्शन 37A के तहत टैक्स किया गया है। तो ये कैपिटल गेन्स होते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी आती हैं, सेक्शन 39 एंड 40 डील करता है इसको। और उसमें डिविडेंड, रॉयल्टी, प्रॉफिट ऑन डेट, बेसिकली जो इंटरेस्ट ऑन दी डिपॉजिट्स होता है उसको प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं। पेंशन, प्राइज विनिंग्स, डिलेड रिफंड्स की कोई पेमेंट होती है। रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद द प्लांट एंड मशीनरी, अगर एक प्लांट एंड मशीनरी पूरा आपने इंस्टॉल किया हुआ है और उसके साथ अगर लीज आउट करते हैं तो वो रेंटल इनकम नहीं होगी, बेसिकली दैट विल बी कॉल्ड अदर इनकम। देन एनी एन्युटी एंड कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी इधर उधर से इनकम आती है तो दैट इज टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। How to determine the tax liability? There exist two regimes. Basically, one is called the normal regime. Under normal regime, आप simply can say कि अगर कोई इनकम है किसी की तो उसके ऊपर टैक्स है, अगर इनकम नहीं है तो नहीं टैक्स होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल regime। और इसमें टैक्स लाइबिलिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द टैक्स पेयर ड्यूरिंग एन इनकम ईयर। और उसके ऊपर जो रेट अप्लाई होता है आफ्टर डिडक्टिंग डिडक्टेबल अलाउंसेज एंड टैक्स क्रेडिट वगैरह लेस करके जो लाइबिलिटी निकलती है, दैट इज कॉल्ड दी टैक्स लाइबिलिटी, और इसको नॉर्मल रजीम कहते हैं। और इसके अलावा दूसरी जो रजीम है जिसमें अभी मेजर हमारा टैक्स लॉ जिसको डील करता है, मोस्ट ऑफ द इनकम्स आर अंडर फाइनल फिक्स टैक्स और सेपरेट ब्लॉक और मिनिमम टैक्स रजीम में आती हैं। Under this regime, tax paid on fixed rate basis. In most of the cases, it is collected or deducted through withholding regimes, whereas in certain cases, paid as a separate block of income. जैसे separate block of income में अभी जो taxation हो रही है, वो होती है कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। ये भी सेपरेट ब्लॉक के तौर पे उसका सेपरेट रेट टेबल है। और उसके साथ साथ प्रॉफिट ऑन डेट अगर 5 मिलियन तक है तो उसको भी सेपरेट ब्लॉक के तौर पे टैक्स किया जाता है। प्रीवियसली रेंटल इनकम जो है वो भी सेपरेट ब्लॉक के तौर पे थी, बट नाउ दैट इज टैक्सेबल अंडर द नॉर्मल regime, although देयर आर डिडक्शंस अलाउड उसमें होती है अभी। डिडक्टेबल अलाउंसेज, इसको समझने की जरूरत है। डिडक्टेबल अलाउंसेज जो होते हैं वो डायरेक्टली आपकी टोटल इनकम में से लेस होते हैं बिफोर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो इसमें डिडक्टेबल अलाउंस अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस जो भी डिडक्शन एट सोर्स हो जाएगी आपकी, तो आपकी टोटल इनकम से लेस हो जाएगी, यानी आप जो इनकम टैक्सेबल लेंगे वो नेट ऑफ ज़कात लेंगे। और उसके साथ साथ any allowance or part of any allowance under this section where is that is not to be deducted under section 9। इसमें यह है कि डिडक्टेबल अलाउंस जो है वो बेसिकली जैसे कि हमने पहले सेक्शन 9 में पढ़ा था कि टैक्सेबल इनकम क्या है, तो वो बिलो जीरो नहीं हो सकती। तो डिडक्टेबल अलाउंस जितने भी अलाउेबल हों अंडर द ऑर्डिनेंस, उसमें से वो जो टैक्स टोटल इनकम है उसमें से लेस करेंगे, बट वो बिलो जीरो नहीं हो सकती। और उसके बाद अगर कोई डिडक्टेबल अलाउंस अगर बच भी गया तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता इन द नेक्स्ट ईयर। इसके अलावा डिडक्टेबल अलाउंसेज जो है वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, ये बिजनेस एंटिटीज के लिए लाइबिलिटी है। लेकिन वो डिडक्टेबल अलाउंस है, यानी बिफोर कंप्यूटिंग द टैक्स लाइबिलिटी आप पहले ही टोटल इनकम में से लेस करते हैं एंड देन यू कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी बाय अप्लाइंग द रेट्स। देन एक डिडक्टेबल अलाउंस जो बाकी नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए जो रेलेवेंट हो सकता है, दैट इज एजुकेशनल एक्सपेंसेस। लेकिन उसमें भी लिमिट है, अगर किसी की इनकम 1.5 मिलियन किसी इंडिविजुअल की है तो सिर्फ उसी को ये अलाउड है। उसके अलावा 1.5 मिलियन या 1.5 मिलियन से ज़्यादा है तो वो इंडिविजुअल्स जो हैं उनके लिए ये अलाउंस भी अवेलेबल नहीं है।
Then there is concept of tax credits. There are certain expenditure या certain payments, certain investments या कोई ऐसी चीज होती है जिसको टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल करार दिया जाता है। और टैक्स रेट जो है, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के बाद, टैक्स रेट अप्लाई करने के बाद टैक्स क्रेडिट्स अगर कोई एलिजिबिलिटी है तो उसको कंप्यूट किया जाता है और फिर वो लेस किए जाते हैं टैक्सेबल, जो टैक्स कंप्यूट किया आपने उसमें से, और देन नेट लायबिलिटी आप पे करते हैं। जैसे लाइक टैक्सेबल इनकम अगर किसी की 4 मिलियन आई है आफ्टर डिडक्टेबल अलाउंसेस, तो उसमें से टैक्स रेट अगर एवरेज सपोज 25% है तो 1 मिलियन हो गया। एंड टैक्स क्रेडिट के लिए अगर कोई अमाउंट एडमिसिबल है या एलिजिबल है दैट इज 500,000, तो 500,000 जो है उसको 4 मिलियन का जो प्रोरेट बनता है, 4 टोटल इनकम जो थी वो 4 मिलियन थी, तो 500,000 अगर एलिजिबल अमाउंट है फॉर टैक्स क्रेडिट तो मीन उसकी जो रेशियो बनती है उसी हिसाब से टैक्स भी कम हो जाएगा। तो 500,000 का जो टैक्स है वो 125,000 बनता है। जैसे इसकी कंप्यूटेशन का फॉर्मूला है कि टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट, एंड देन नेट टैक्स लायबिलिटी आप कंप्यूट करते हैं। जो टैक्स क्रेडिट्स अलाउेबल हैं अभी करंटली, जिसमें से कुछ जो आपकी प्रोविजंस में एग्जिस्ट करते हैं, वो एक चैरिटेबल टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल डोनेशंस है, लेकिन ये प्रॉपर एविडेंस के साथ होगा, थ्रू क्रॉस बैंकिंग चैनल होगा, तो देन ये एलिजिबल होंगे आप इसको, इस टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए। अदरवाइज अगर आपने कैश पे किया है, प्रॉपर रिसिप्टेड नहीं है, तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसमें आपने अगर किसी को डोनेशन या कंट्रीब्यूशन दी है टू दी फॉलोइंग, लाइक गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एजुकेशन या यूनिवर्सिटी, किसी गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एजुकेशन या यूनिवर्सिटी को अगर कोई आप कंट्रीब्यूशन देते हैं, अदर देन फी जो आप बच्चों की देते हैं, उसके अलावा वैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। देन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स और रिलीफ फंड, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड था, उनको अगर देते हैं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एलिजिबल हैं 100C के लिए, यानी दो टू सब सेक्शन 36 सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 की जिनकी अप्रूवल है, तो उनको भी इसमें एलिजिबिलिटी है, या क्लास 61 में जो एनजीओज दी गई हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं ऑफ द सेकंड शेड्यूल, तो उनको भी जो डोनेशन आपने या कंट्रीब्यूशन की है वो भी टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। और उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशंस का एक शेड्यूल जारी किया है FPR इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, 13th शेड्यूल है, उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है। वो उन ऑर्गेनाइजेशंस को अगर कंट्रीब्यूशन होती है तो दैट इज आल्सो एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट, बट देयर इज लिमिट, उसमें एक लिमिट है, ये नहीं है कि जितनी आपने कंट्रीब्यूशन की सारी टैक्स क्रेडिट के लिए अवेलेबल हो जाएगी। लिमिट जो है, अगर इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मीन फर्म्स हैं, तो उनके लिए 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन फॉर द टैक्स फॉर द ईयर, यानी मैक्सिमम जो एलिजिबल अमाउंट है वो 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम जो है एलिजिबल अमाउंट है फॉर द टैक्स क्रेडिट। जबकि इन केस ऑफ ए कंपनी 10% ऑफ द टैक्सेबल इनकम जो है वो आप का टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल होगी। इससे ज्यादा अगर आप देंगे भी तो वो टैक्स क्रेडिट के लिए एडमिसिबल नहीं होगी। देन ये तो हो गए नॉर्मल हेड्स के, जिसमें मैंने बताया कि हेड्स ऑफ इनकम जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक आते हैं, बट फ्रॉम द लास्ट ईयर, टैक्स ईयर 2022, थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022 एक नया टैक्स आया था, डीम्ड इनकम, और ये बेसिकली दिस वाज द टैक्स कंप्यूटेड ऑन द इमूवेबल कैपिटल एसेट्स, बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो हैं उनके ऊपर था, और एप्लीकेबल ऑन रेजिडेंट पर्सन्स ओनली। The income from movable capital assets shall be deemed to be 5% of its fair market value, and tax उसके ऊपर जो होगा वो 20%। ये भी सेपरेट ब्लॉक का टैक्स है बेसिकली। A tax at the rate of 20% on such deemed income will be charged from tax year 2022 onward, यानी 2023 जो अभी टैक्स ईयर है जिसकी आप रिटर्न फाइल करेंगे
उसमें भी ये एप्लीकेबल होगा। और इफेक्टिव रेट इसका बेसिकली ये है कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है इमूवेबल कैपिटल एसेट्स की, उसका 1% आपने देना होगा। बट कितने पे देना होगा, कैसे कैलकुलेट करना है, देर इज फॉर्मूला उस इसके लिए है कि आपके जो एसेट्स हैं उनकी अगर फेयर मार्केट वैल्यू 25 मिलियन और अबव है तो तब ये एप्लीकेबल होगा। एंड देर आर सर्टन एक्सक्लूजन्स एज वेल, जैसे एक वन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रेमिसेस, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, एंड देर आर सर्टन अदर एक्सक्लूजन्स आर एज वेल। तो ये वाला टैक्स भी आपने इस दफा देना है टैक्स रिटर्न के साथ। तो इसमें थोड़ा सा मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड के इसमें जो एक्सक्लूजन्स हैं अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 7E, इमूवेबल एसेट्स, एसेट्स ओन्ड बाय बिजनेस प्रेमिसेस जिसमें आप खुद बिजनेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी जहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आप कैरी ऑन कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग फार्म हाउसेज इन लैंड नेक्स्ट देयर टू। उसके अलावा कैपिटल एसेट्स जो अलॉट हुए हैं शहीद को, फेडरल एंड पब्लिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, वार वोंडेड पर्संस को, उसमें भी नहीं होगा। और उसके अलावा एनी प्रॉपर्टी विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, मीन ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर अदरवाइज आप टैक्स दे रहे हैं, लाइक एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, वो भी इसमें शामिल नहीं होगी इस टैक्स की कंपटीशन के लिए। और एक ऐसा एसेट जो आपने इसी साल एक्वायर किया है, जिस साल का आप टैक्स दे रहे हैं, सपोज 2023, फ्रॉम जुलाई 2022 टू 30 जून 2023 अगर आपने कोई एसेट एक्वायर किया है तो उसका टैक्स आपने 2023 टैक्स ईयर में नहीं देना। तो इसके साथ प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट की एक्सक्लूजन्स हैं। कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया है, बेसिकली दीज आर दी इमूवेबल प्रॉपर्टीज। और फार्म हाउसेज को भी डिफाइन किया गया है क्योंकि फार्म हाउसेज पे टैक्स है और फार्म हाउस को शामिल करना है, बट फार्म हाउस को भी डिफाइन किया गया कि मिनिमम 2000 स्क्वायर यार्ड एरिया हो और कवर्ड एरिया उसमें 5000 स्क्वायर फीट हो, दैट विल बी कॉल्ड द फार्म हाउस। देन 236C सेक्शन है, ऑल्दो टैक्स रिटर्न के साथ तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बट किसी ने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और बेचनी है तो उस सूरत में एक अमेंडमेंट की गई थी कि जो रजिस्टरिंग ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है वो भी देखेगी कि ये डीम्ड इनकम वाला टैक्स जो है वो पे हुआ है या नहीं हुआ। और उसके बाद फिर सर्टेन एक्सक्लूजन्स भी उसमें दी गई जो कि इस सेक्शन में ही है। तो सर्कुलर 1 एंड सर्कुलर 3 ये जुलाई और अगस्त में आए थे। तो उसमें फर्दर उनके लिए वो सर्टिफिकेट भी एक लाजमी करार दिया गया है। तो अब सर्टिफिकेट जो है वो आपका ऑनलाइन प्रिंट हो जाता है इफ यू फाइल दी टैक्स एनेक्चर अगर आप फिल करते हैं उसके साथ। अच्छा, इसके साथ साथ सेक्शन 7E जो है उसमें वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज भी हुआ था बिफोर द हायर कोर्ट्स एंड देयर आर डिफरेंट आउटकम्स। लाइक लाहौर हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, सिंध हाई कोर्ट ने इसको डिपार्टमेंट की फेवर में दिया और कहा कि ये टैक्स पे होना चाहिए। देन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें बहुत सारे स्टेज ग्रांट किए हैं और फाइनल हेयरिंग्स भी हो चुकी हैं, बट जजमेंट इज रिजर्व्ड और स्टिल नॉट येट नॉट इशूड। सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था अगेंस्ट द टैक्स पेयर्स, उसको उसमें सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में भी एक पार्शियल हेयरिंग हुई, इंटरम हेयरिंग हुई, और इंटरम हेयरिंग में उन्होंने कहा जी 50% आप टैक्स दे दें। तो इट मीन्स के जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है उस सिलसिले में लाहौर के हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन में केस फॉल करते हैं उनके ऊपर डीम्ड इनकम टैक्स नहीं है। तो इसलिए पंजाब में जो प्रॉपर्टीज हैं उसको भी एक्सक्लूड हम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बाकी एक्सक्लूजन्स कहा था, तो पंजाब में प्रॉपर्टीज जो एग्जिस्ट करती हैं उसकी भी एक्सक्लूजन हो सकती है इन व्यू ऑफ द डिसीजन एंड ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। टैक्स इन टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेबल कैसे कंप्यूट होता है, जैसे कि टोटल इनकम लेस एग्जेम्प्ट इनकम, आप उसमें से लेस कर देंगे, डिडक्टेबल अलाउंसेस हमने पहले डिस्कस किया वो लेस करेंगे, फिर टैक्सेबल इनकम आपकी आएगी, कंप्यूट होगी। उसके ऊपर आप कंप्यूटेशन कैसे करेंगे टैक्स पेबल की,
टैक्स रेट अप्लाई करेंगे फर्स्ट शेड्यूल में, अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल वाला रेट करेंगे। एओपी, इंडिविजुअल एंड एओपी का एक ही टेबल है, सेपरेट ब्लॉक वाले भी हैं, बाकी चीजें भी हैं, उसको रेट अप्लाई करेंगे। देन सी दी टैक्स रिडक्शन इन टैक्स रेट्स पार्ट टू में कुछ रिबेट्स हैं या रिडक्शन इन टैक्स रेट्स है, लाइक टीचर्स रिबेट है, उसमें रिडक्शन टैक्स लाइबिलिटी वो भी लेस करेंगे। रिडक्शन इन टैक्स रेट्स मीन कि कुछ इनकम्स पे रेट ही कम है, वो पार्ट टू में देखेंगे। और लाइक एक अलाउंस है, फ्लाइंग अलाउंस है जैसे पायलट्स वगैरह का, उसके ऊपर कम था। देन टैक्स लाइबिलिटी रिडक्शन, उसके बाद जो भी टैक्स बचेगा उसके ऊपर आप टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। 25% है, सॉरी, टीचर्स और रिसर्चर्स के लिए। तो देन उसमें प्लस करेंगे टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, क्योंकि ये भी अभी एप्लीकेबल है। देन टोटल टैक्स पेएबल आएगा, और उसमें से एज यू ऑल नो कि टैक्स ऑलरेडी पेड जो है आपके वो एडजस्ट हो जाएंगे, देन पेएबल या रिफंडेबल आपका आएगा। यह सुपर टैक्स भी है, वो अगर 300 मिलियन से 150 मिलियन से अबव इनकम्स हैं, बल्कि लास्ट ईयर तो 150 मिलियन से अबव, तो वो सुपर टैक्स भी कंप्यूट होगा, देन नेट टैक्स पेएबल आएगा। टैक्स रिटर्न फाइलिंग के क्या क्या चीजें फर्दर एप्लीकेबल हैं। एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट बनती है एफबीआर की, उसमें जो भी रिटर्न फाइल करता है उसमें उसका नाम आता है, लेकिन टाइम पे अगर फाइल करता है। और ये एटीएल लिस्ट जो है वो 1 मार्च ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर अपडेट होती है, और संडे एट 12 AM रात को 12 बजे जो है वो लिस्ट अपग्रेड होती है। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ऑन एटीएल, यानी फाइलर अगर आप हैं एटीएल पे हैं, फाइलर नॉन फाइलर वाज ओल्ड कॉन्सेप्ट, अब एटीएल का नाम है, एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट। व्हेन यू बिकम फाइलर या एटीएल में होते हैं तो देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स। एक तो यह है कि यू हैव टू यू बिकम ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली दिस इज आवर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू फाइल दी टैक्स रिटर्न। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है, देन देयर आर अदर बेनिफिट्स एज वेल, जैसे कि बेसिकली नॉन फाइलर्स को या नॉन एटीएल्स को पेनलाइज किया गया है टू इंश्योर द कंप्लायंस के लॉज की, कंप्लायंस और टैक्स लॉज की। तो उसके लिए कुछ जो नॉन एटीएल लोग हैं उनके लिए कुछ सजाएं रखी गई हैं, बेसिकली उनको पेनलाइज किया गया है। लाइक उनके लिए रेट्स जो है विद होल्डिंग के, सप्लाई सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट्स के, वो डबल हैं। एनुअल टोकन टैक्स फॉर रिन्यूअल ऑफ व्हीकल्स या परचेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कार्स के लिए भी उनके लिए ज्यादा टैक्स है। सेल एंड परचेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में भी उसके लिए सेल के लिए डबल रेट है, और परचेज के लिए उसमें बहुत ज्यादा रेट है, 2.5 जो है वो बढ़ जाता है। जैसे फाइलर के लिए या एटीएल के लिए 2.3% है, और नॉन एटी के लिए, एटीएल के लिए 10.5% टैक्स है। टैक्स ऑन डिविडेंड भी डबल हो जाता है, प्रॉफिट एंड डेट पे टैक्स भी डबल हो जाता है, प्राइस बॉन्ड्स बिजनेस वगैरह पे डबल हो जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर किसी को मिलता है तो वो भी डबल हो जाता है। और कैश विड्रॉल्स के लिए अभी रिसेंटली अप्लाई हुआ है, और उसमें 0.6% जो नॉन एटीएल लोग हैं अगर 50,000 से ज्यादा विड्रॉल करते हैं तो उनके ऊपर भी टैक्स है। तो इस टू अवॉइड ऑल दीज आपको फाइलर या एटीएल में होना जरूरी है। रिटर्न ऑफ इनकम, एवरी टैक्स, जो जिसकी भी टैक्सेबल इनकम है उसके लिए फाइल करना जरूरी है। जिसकी प्रॉपर्टी है, कार है 1000 सीसी, या कोई भी मेंबर है चैम्बर का, ट्रेड बॉडीज का, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, सीएमए, बार काउंसिल का, आईसीएमए, आईकैप मेंबर जितने हैं सबके लिए जरूरी है। सेक्शन 114 में एक्सप्लेन किया गया है। और किन के लिए जरूरी नहीं है वो हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द टैक्स रिटर्न, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की वजह से कोई विडो है, या एन ऑर्फन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स, डिसेबल पर्सन है, और या नॉन रेजिडेंट पर्सन है, तो उसकी अगर प्रॉपर्टी है उस वजह से वो फाइलर बनना चाह रहा है, उसके लिए फाइल करना जरूरी है, तो वो ना भी फाइल करे, एज पर लॉ इज परमिटेड। फिर वेल्थ स्टेटमेंट है। वेल्थ स्टेटमेंट किसने फाइल करनी है? एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल, यानी नॉन रेजिडेंट्स जो हैं उनके लिए जरूरी नहीं है वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना।
और एवरी मेंबर ऑफ एओपी इर्रेस्पेक्टिव को रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर कोई फर्म में पार्टनर है तो वो नॉन रेजिडेंट भी है तो तब भी उसने रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है। यस, इन एवरी मेंबर ऑफ एओपी। वेल्थ रिकंसिलिएशन ये एक बनानी होती है, साथ ये भी जरूरी है कि जिसमें आप मैच करते हैं कि आपकी वेल्थ में जो इंक्रीज डिक्रीज हुई है उसको आपने रिकंसाइल करना है विद द सोर्सेज। जो कि आपके एसेट्स अगर बड़े हैं टू क्रिएट दोज एसेट्स, क्या सोर्सेज थे उसमें। बेसिकली आप अगर सिंपल रिकंसिलिएशन अकाउंटेंट्स वाली करें तो वो ये होती है कि आपके पास ओपनिंग सेविंग्स, बैंक बैलेंस या क्या था, और उसमें से ऐड इनकम और इनफ्लोज ड्यूरिंग द ईयर क्या हुए, लेस एक्सपेंसेस एंड आउटफ्लोज ड्यूरिंग द क्या हुए, तो उसमें से जो बाकी बचता है वो आपका इंक्रीज इन एसेट्स हो सकता है। इसको इस तरीके से वेल्थ रिकंसिलिएशन जो है वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आती है। ओपनिंग क्लोजिंग वेल्थ आपकी कंप्यूट होके आएगी, उसमें से ओपनिंग नेट वेल्थ जो है वो लेस हो जाएगी, तो नेट इंक्रीज जो है उसको आपने रिकंसाइल करना है। उसमें फिर आप इनफ्लोज को लेते हैं, इनफ्लोज में से फिर आउटफ्लोज लेस करते हैं, तो जो नेट इंक्रीज है वो आपकी शो होती है और उसके मैचिंग में होनी चाहिए। फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट एक सेक्शन 116A है। रेजिडेंट इंडिविजुअल, एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये भी सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, टू फाइल ए सेपरेट फॉरेन इनकम स्टेटमेंट। और हु हैव फॉरेन इनकम ऑफ USD 10,000 और मोर, और जिसके एसेट्स हैं फॉरेन में 100,000 और मोर, उनके लिए ये वाली स्टेटमेंट भी फाइल करना जरूरी है। और इसके लिए 30 सितंबर लास्ट डेट है। पेनल्टीज हैं इसकी जी, जो फाइल नहीं करता उसमें 1,000 फॉर एवरी डे, और या 10,000 इन केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल, एंड मैक्सिमम पेनल्टी शैल नॉट एक्सीड 200,000 फॉर द टैक्स पेएबल। और इसमें अगर 1 2 3 महीने के अंदर अंदर करते हैं तो देन रिडक्शन इन पेनल्टी भी है। और वेल्थ स्टेटमेंट ना फाइल करने की जो है वो पेनल्टी बहुत ज्यादा है, दैट इज मिनिमम 100,000। Apart from penalties, who do not file the tax return within due date, उनका नाम जो है वो ATL में नहीं आता। और ATL में अगर नाम नहीं आता तो इसका मतलब है कि बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं उससे आप उनको फोरगो करते हैं, विद होल्डिंग के रेट ज़्यादा हो जाते हैं, बैंक से विद होल्डिंग होगी इन केस ऑफ विथड्रॉल्स। और अगर लेट फाइलिंग है तो फिर भी बंदा ATL में आना चाहता है तो सेक्शन 182A के तहत आप सरचार्ज पे करके ATL में आ सकते हैं। इंडिविजुअल जो है 1,000 सरचार्ज पे करे तो ATL में आ जाएगा, AOP 10,000, एंड कंपनी के केस में दैट इज द अमाउंट इज 20,000। तो दिस वाज ऑल, ये एक ब्रीफिंग थी। क्योंकि ये ब्रीफिंग आपको होगी तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड द टैक्स रिटर्न फाइलिंग एंड हाउ टू फाइल द टैक्स रिटर्न ऑन RS पोर्टल। आवर एक्सपर्ट मिस्टर बिलाल विल एक्सप्लेन। तो बिलाल साहब, आई विल हैंड ओवर टू यू आफ्टर ओपनिंग योर प्रेजेंटेशन। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। जैसा कि मियां मोहम्मद रमज़ान साहब ने बहुत अच्छी तरह से वो ब्रीफ किया है कि किस तरह से किसने रिटर्न फाइल करनी है, और टैक्सेबल इनकम क्या है, वेल्थ स्टेटमेंट क्या है, 7E क्या है, टैक्स क्रेडिट, ये चीज़ें ऐसे फाइल टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि हमने रिटर्न फाइल कैसे करनी है। इसके लिए पहले आपने जाना है FBR की साइट पे, fbr.gov.pk। फिर उसके बाद आप क्लिक करेंगे, इस पे आपको नज़र आ रहा होगा आयरिस। आयरिस, इसमें आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, इनकम टैक्स आयरिस। आयरिस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी आयरिस की। इसमें आप अपना आईडी इंटर करेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो आप लॉगिन कर लेंगे।
उसके बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी, वर्क फ्लो ऑफ रिटर्न हैज़ बीन ओपन। डिक्लेरेशन पे जाएंगे, आपको एक टैब नज़र आ रहा होगा, मैंने इस पे रेड रेड कलर से सर्कल किया है, डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। ऑल ऑप्शन शो, इसमें ऑप्शन शो कर रहा होगा, रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल और रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये रिटर्न के फॉर्म आ जाएंगे। सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल, क्लासिक व्यू, नॉर्मल रिटर्न। ये बेसिकली ये दो चीज़ें ही इसमें हम कर रहे होते हैं, सैलरी रिटर्न इंडिविजुअल और नॉर्मल रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल, एओपी और कंपनीज के लिए होती है। इसमें कंप्लीट ईयर और इनकम्प्लीट ईयर की ऑप्शन भी है। मिसाल के तौर अगर कोई कंपनी रजिस्टर हुई है अप्रैल या मई में, तो इसका वो इनकम्प्लीट ईयर आएगा, तो आप सिंपली वो इनकम्प्लीट ईयर वाली रिटर्न ओपन करेंगे। अभी आप नॉर्मल रिटर्न ओपन करेंगे तो इसमें सैलरी की भी आप डाल सकते हैं, और जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी सैलरी इनकम है या कोई प्रॉपर्टी इनकम है, उसमें आप नॉर्मल रिटर्न ओपन करनी पड़ेगी। इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो जब आप रिटर्न फॉर्म ओपन करेंगे, इसमें आपको टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा। टैक्स पीरियड कौन सा आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपने 2022 की ओपन करनी है तो 2022, अगर 2023 की करनी है तो 2023 इसमें एंटर करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रिटर्न ओपन हो जाएगी। अब इसमें हेड आ रहे हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, जैसे कि मियां साहब ने पहले भी इसमें एक्सप्लेन किया है कि मुख्तलिफ हेड्स हैं सेल इनकम के। अगर आपने सैलरी वाली रिटर्न फाइल करनी है तो सैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने सैलरी एंटर करनी है। इसमें 3 कॉलम्स आ रहे हैं, टोटल अमाउंट, एग्जेम्प्ट और सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। टोटल अमाउंट आप इसमें डालेंगे जितने पूरे साल की आपकी सैलरी इनकम है, इसमें टोटल वाले कॉलम में आपने सैलरी डालनी है, और फिर मेडिकल एग्जेम्पशन आपको मिली हुई है तो आपने एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में एंटर करना है। आपके पास अगले कॉलम में ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स एडजस्टेबल और टैक्सेबल इनकम शो हो जाएगी। उसके बाद अगर आपके कोई डिडक्टिबल अलाउंसेस हैं, मिसाल के तौर आपने कोई ज़कात दी है, चैरिटेबल डोनेशन को जो रजिस्टर्ड अप्रूवल है, अप्रूव चैरिटेबल है ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आपने थ्रू बैंकिंग चैनल के थ्रू कोई ज़कात दी है, वर्कर वेलफेयर फंड है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, ये डिडक्टिबल अलाउंस आप इसमें एंटर करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन, तो चिल्ड्रन एजुकेशन, उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ट्यूशन फी पेड, ये इसमें आपने एंटर करना है। फिर आप नेक्स्ट जाएंगे तो आपके पास एक टैक्स रिडक्शन का टैब ओपन है। उसमें कोई फुल टाइम टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, तो उसको 25% रिबेट मिलता है, वो आप इसमें एंटर करेंगे। बाकी भी इसमें रिडक्शन आ रही है, टैक्स रिडक्शन ऑन टैक्स चार्ज, बहबूद सर्टिफिकेट, टैक्स रिडक्शन ऑन कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, टैक्स रिडक्शन जो भी आपके रिलेटेड है इसमें आपने टैक्स रिडक्शन में वो आप इसमें एंटर करेंगे तो आपको इस पे टैक्स रिबेट मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल डोनेशन अंडर 61 आ रहा है, टैक्स क्रेडिट टू कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड है, टैक्स क्रेडिट पीओएस मशीन जो आपको पता है भी, एक रिटेलर है, कोई शॉप है, वो पीओएस में रजिस्टर इंटीग्रेटेड है, तो उसको भी ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सेक्शन 65F है, इन्वेस्टमेंट टू टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड, ये मुख्तलिफ किस्म के इसमें आपको शो कर रहे हैं। इसमें जिसका आप जो भी आपका रेलिवेंट होगा इसमें आप टैक्स क्रेडिट डालेंगे तो वो आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अगर
किसी का शेयर फ्रॉम AOP है, वो भी आपको इसमें टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पे आपको शो हो रहा होगा कि एडजस्टेबल टैक्सेस। इसमें आपके तमाम एडजस्टेबल टैक्स, अगर कोई आपका सैलरी के ऊपर टैक्स विद हेल्ड हो गया है, वो आप एडजस्टेबल कॉलम में डालेंगे। अगर प्रॉफिट ऑन डेट, ये कंपनीज के लिए आता है। अगर कोई कंपनीज का प्रॉफिट ऑन डेट पे टैक्स विद होल्ड हो जाता है तो वो भी एडजस्टेबल है। और इसमें बहुत सारे हैं, जैसे PTCL के ऊपर है, टेलीफोन के ऊपर है, सेल फोन के ऊपर है, व्हीकल्स। आपका अगर कोई 236K का जो आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसके ऊपर विद होल्ड हो गया है, या कोई आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं 236C का, जो भी आपके टैक्स हैं वो इसी हेड में आएंगे, एडजस्टेबल टैक्स वाले में। फिर आपके पास एक टैक्स चार्जेबल एंड फाइनल फिक्स जो कॉलम है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर आप कोई इंपोर्टर है, कोई इंपोर्ट करता है चीज़ें, तो उसके ऊपर वो उनका इनकम टैक्स विथहोल्ड हो जाता है, वो भी आप फाइनल फिक्स वाले में एंटर करेंगे। या कोई 236 के या अंडर सेक्शन 153 1B 153 1A है, कंट्रैक्ट के ऊपर है 153 1C है, जो भी है प्रॉफिट ऑन डेट है, अगर उसकी वो लिमिट 5 मिलियन से कम है, वो भी आप इस फाइनल फिक्स वाले टैब में एंटर करेंगे। इसमें एक नया इनकम टैक्स रिटर्न में टैब है, कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E, जैसा कि मियां मोहम्मद रमजान साहब ने वो इसमें एक्सप्लेन भी किया है कि अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई AOP है, जो कंपनी है, एक से ज़्यादा कोई एसेट रखता है, तो उसके फेयर मार्केट वैल्यू या आपने डिक्लेयर वैल्यू की हुई है, अगर डिक्लेयर्ड वैल्यू ज़्यादा है फेयर मार्केट से, तो उसका 1% उसमें टैक्स देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। इसके लिए ये है कि अगर किसी ने 7E का फॉर्म जो फाइल नहीं किया, उसके लिए ये है कि कोई प्रॉपर्टी अगर वो सेल करता है, तो जब तक ये फॉर्म उसका 7E फाइल नहीं हुआ होगा, तब तक वो ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। इसके लिए ये ज़रूरी है कि कैपिटल एसेट 7A फॉर्म फिल करना लाजमी है। कोई अगर एक भी प्रॉपर्टी है, फिर भी इसमें आपने एंटर करना है। इसके बाद आपके पास विंडो शो होगी कि आपने कैसे इसमें कैपिटल एसेट जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कैसे एंटर करनी है। ये एक विंडो ओपन हुई है। इसके राइट साइड पे आप देखेंगे प्लस का निशान शो हो रहे हैं। अगर किसी की एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है, आप इस पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपसे पूछ रहा है कि मेजरमेंट क्या सिलेक्ट करना है, कनाल है, स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर फीट है, एरिया कितना है, उसमें आप एड्रेस उसका प्रॉपर्टी का इंटर करेंगे। फिर कहाँ पे है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, सिटी कौन सा है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपके पास नीचे एक शो हो रही है, वेदर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 7। अगर ये एग्जेम्प्ट है तो आप यस करेंगे, अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो आप नो करेंगे। मिसाल, अब अगर एक इंडिविजुअल के पास, एक बंदे के पास एक ही प्रॉपर्टी है, अब वो एक प्रॉपर्टी तो अपने पास रख सकता है, वो यस पे क्लिक करेंगे, यस एग्जेम्प्टेड। फिर इसके नीचे आपको रीज़न देनी होगी कि ये एग्जेम्प्ट क्यों है। जैसे कि वो पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट ने वो एक ऑर्डर दिया हुआ है कि उसमें अभी जो 7 एप्लीकेबल नहीं है, इसमें उन्होंने दिया एग्जेम्प्टेड स्टे ग्रांटेड बाय कोर्ट। पंजाब वाले तो ये इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने एक ही एसेट है, तो आप वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय द टैक्स पेयर, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई दो प्रॉपर्टीज हैं, एक में खुद रह रहा है, फिर एक वो करेगा वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय द टैक्स पेयर, और दूसरी प्रॉपर्टी अगर उसने रेंट पे दी हुई है, तो इसमें एक हेड आ रहा होगा कि टैक्स चार्जेबल
इनकम विच वो टैक्स चार्जेबल जो आ रहा होगा हेड, उस पे आप सिलेक्ट करेंगे रीजन के ये भी हमारे इसमें एग्जाम्प्ट है। इसके बाद जो आप इसमें दो कॉलम शो होंगे, एक डिक्लेयर्ड वैल्यू, एक फेयर मार्केट वैल्यू। आपने दोनों में डिक्लेयर वैल्यू भी डालनी है जो आपने ऑलरेडी वेल्थ में डिक्लेयर कर चुके हैं, और फेयर मार्केट वैल्यू भी उसमें एंटर करनी है। जो हायर होगी उसके ऊपर वो, अगर उसकी वैल्यू 250 मिलियन से इंक्रीज कर रही है, 25 मिलियन से इंक्रीज कर रही है, तो उसके ऊपर वो 1% डीम टैक्स बन जाएगा। इसके बाद फिर कंपुटेशन का आता है। इसमें आपकी टैक्सेबल इनकम शो हो जाएगी, जितने भी इनकम फ्रॉम सैलरी है या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो भी हेड आ रहे हैं, आपने जिसकी इनकम है उसी के सामने वो इनकम शो करेंगे और टैक्सेबल टोटल इनकम आ जाएगी। फिर उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। और इसमें आप देखेंगे कि 7E का भी इसमें शो कर रहा है। टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सन, 4C भी आ रहा है। टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7A 20% ऑफ 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, ये भी आ रहा है। जितने भी टैक्स लेबिलिटी होगी, टोटल टैक्स लेबिलिटी बन जाएगी। इसमें अगर कोई आपकी विद होल्डिंग होगी वो एडजस्ट होगी, नेक्स्ट नेट टैक्स लेबिलिटी आपके पास शो हो जाएगी कि कितना आपका पेएबल बन रहा है। ये हो गई रिटर्न। अभी आप वेल्थ स्टेटमेंट पे आते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट के टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तीन हेड शो हो रहे होंगे: पर्सनल एक्सपेंसेस, एसेट एंड लायबिलिटीज, और रिकंसिलिएशन। आपने इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस में आपने डिटेल इंटर करनी है। अगर कोई आपका रेंट एक्सपेंस है, टैक्स चार्ज, टैक्सेस हैं, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस है, ट्रैवलिंग है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, आप ये सब एक्सपेंसेस की डिटेल में इंटर करेंगे। उसके बाद आप अपने एसेट एंड लायबिलिटीज आपने इंटर करनी है। एसेट एंड लायबिलिटीज के हेड पे आप क्लिक करेंगे। या आपके पास शो हो रहा होगा एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी। उसमें आपने प्रॉपर एड्रेस इंटर करना है, तो ओके का बटन प्रेस कर देना कि इसमें आपने फिर अपनी वैल्यू इंटर कर देंगे। अगर कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। बिजनेस कैपिटल है कोई, तो इसमें आ जाएगा। अगर इक्विपमेंट नॉन बिजनेसेस हैं, कोई आपके एसेट हैं, वो भी आप इसमें एंटर करेंगे। एनिमल्स कोई हैं, वो भी इसकी आप टोटल वैल्यू एंटर कर देंगे। उसके बाद आपके पास ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, जो भी आपके बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस हैं, वो आप इसमें एंटर करेंगे। मोटर व्हीकल्स हैं किसी की, तो एक से ज़्यादा हैं तो 1 बाय 1 इसी तरह आप वो एंटर कर देंगे। प्रीशियस कोई आइटम है जैसे कि ज्वेलरीज है, पर्सनल आइटम है, वो भी आप इसमें एंटर करेंगे। हाउस होल्ड इफेक्ट हो गया, पर्सनल आइटम। कैश, जो आपके पास कैश इन हैंड है, वो भी आप इसमें एंटर कर देंगे। आपके पास एनी अदर एसेट है, कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, कोई अगर कोई और इन्वेस्टमेंट की हुई है, एनी अदर एसेट में आप इंटर करेंगे। उसके बाद आप टोटल एसेट इंटर करने के बाद आपके पास टोटल रिकंसिलिएशन का टैब आएगा। आपने उसमें देखना है कि नेट एसेट करंट ईयर कितने हैं, टोटल वैल्यू। फिर आपने नेट एसेट प्रीवियस ईयर, ये आपने अपनी प्रीवियस वेल्थ से चेक कर लेना है कि प्रीवियस ईयर की मेरी वेल्थ में कितने क्लोजिंग था, अभी ओपनिंग उसने ठीक पिक की है या कुछ एरर भी हो सकता है इसमें। इसमें इंक्रीज डिक्रीज शो कर देगा। फिर उस रिकंसिलिएशन में आपने इनफ्लोज आपने एंटर करने हैं कि आप सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, टैक्सेबल इनकम है तो आप सब्जेक्ट टू नॉर्मल वाले में एंटर करेंगे। कोई एग्जेम्प्ट है, मिसाल के तौर कोई मेडिकल एग्जाम्पशन है, किसी की सैलरी इनकम है तो उसमें मेडिकल एग्जाम्पशन है, या कोई अगर इसमें कुछ और भी एग्जाम्प्ट हो सकती है।
और इसमें फाइनल फिक्स वाले में अगर कोई आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, आप जब एंटर करते हैं तो विद इन 1 ईयर, विद इन 4 ईयर, या इस तरह से कोई आप एंटर करो, कोई भी गेन आता है फाइनल फिक्स वाले टैब में आप रिकंसिलिएशन में एंटर करेंगे उसका गेन जो भी है। फॉरेन रेमिटेंसेस की जो आपके पास है वो भी आप इसी में एंटर करेंगे। इनहेरिटेंस है, कोई इनहेरिटेंस अमाउंट आपको कोई मिली है, गिफ्ट मिली है वालदैन से, जो भी है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू आप इसमें एंटर करेंगे। और कोई ब्लड रिलेशन से कोई आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू कोई कैश मिला है, वो भी आप गिफ्ट वाले हेड में डालेंगे। उसके बाद आप नीचे आउटफ्लोज देखेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस। आप पर्सनल एक्सपेंसेस में डिटेल एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसी हेड में ले आएगा। एडजस्टमेंट इन आउटफ्लोज, कोई आपका टैक्सेस वगैरह विद होल्ड हो गए हैं तो आप इसमें एंटर कर देंगे। अगर कोई आपने गिफ्ट किसी को आपने दिया है, ब्लड रिलेशन को, किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो आप रिकंसिलिएशन में इसे आउटफ्लो में गिफ्ट में शो कर देंगे, तो आपकी ये वेल्थ रिकंसाइल हो जाएगी। थैंक यू। Thank you, Bilal Sahab, for explaining, participating the. Okay, जी, thank you so much. Thank you all for participating with the interest. आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट किया and we are highly obliged to all of you. और इस तरह के सेमिनार्स we will be arranging in future also. And I would also like to thank my co-speakers, panelists, Mr. Bilal and Ms. Sadaf, जो कि मेरे साथ इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी तैयारी की और उसके अलावा आपके क्वेश्चंस के भी आंसर्स दिए। And I also thank to my team, Mr. Uzair, our business development manager, and Ms. Bajar, and the team at backend, Mr. Noman, और उसके अलावा एक और हमारे कोलीग हैं, उन सब का आई वुड लाइक टू थैंक अब्दुल्ला का और नुमान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। With this, we end our today's session. Thank you all and have blessed.